Hello everyone, welcome to our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. All of you know that yesterday the GSI prelims, UPSC GSI prelims, the result came out, and all of you might have been sure about who are getting qualified or who are not being qualified. So, congratulations, first of all, to all those who qualified for this time, and now it's time for your mains preparation. And those who have not qualified, in my opinion, there are so many of chances because so many of exams are there, so better you try to make a seat over there. Okay, so those who have qualified this GSI prelims this time, and in the last video I also told some around the cutoff mark should be 150 to 160, but after getting this result, and this is a very quick result, it is not more than 10 or 10 days, I think 10-15 days, and within 10-15 days they have just published this result. That's also great. And another thing, this 150 160, this mark, maybe I think in my opinion the mark qualifying mark should be around 145 to 140. This would be the qualifying mark. And there are so many of students who are at this borderline, and some around 1700, 1750, this much of students they have taken for this prelims. Okay, so out of this 1700 means just let it 1800. Okay, from 1800 they will just appear for the mains exam. Okay, and for interview the ratio will be, I think in my opinion the ratio will be 1 is to 3. So for around 250 seats there should be 750, um, 1 is to 3 means 750 around students will be qualified for the interview. 750 means around 800. So it is very crucial for those, because maximum students there must be, they will be going through this borderline 140 to 150, isn't it? So 140 to 150, those who are at this borderline, so you don't have any options. You have to do this mains exam. Okay, very well. So your expected mark for this main should be minimum 90 mark in each paper. Paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4, that is in the hydrogeology. So 90 should be the target, and who are general, so target should be 100. 100 is good, but it is very tough to get that 50% out of 600. If you are able to secure 300, then that is a very good score in mains exam. So let it be. So all of you, all the best. Those who are preparing by themselves, or those who are preparing by their own, and those who are getting enrolled in some coaching centers, those are also good. But make sure that whatever you're preparing for, the preparation should be very sincere, and do not take any risk in the sense, for very minute things deserving candidate must not leave, or must not just leave this chance. So this is a very big chance. So I think everyone should try your best. If you are preparing by yourself, that is good. If you are joining to some institutes, that is also good. But the sole purpose should be, you should not be, if you are a deserving candidate, okay, and if you have qualified this prelims, then congratulations first thing. And to make sure that your preparation should be very sincere, and not for any single very silly mistakes. Do not let this chance go. Okay, so if you are preparing yourself, that is good. And if you want our help, then obviously you are welcome. So this is our Art Geology group. So our class will be started from 5, means tomorrow. Our classes will start from tomorrow. This is the barcode. You can scan this barcode and directly you can get a link. Okay, our link tree is there. You can get all our social media platforms, YouTube channel, and our application is also there in Play Store. You can download and you can go and purchase our course also. Okay, so how to prepare for UPSC GSI mains 2023. Now the thing is, those who have qualified this prelims, then this mains,
मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Answer writing is very important. And what are the things that we should focus on? Okay, so you can see, let me just change the color. White. Okay. First thing is your concept building. Why concept building? Because if you see, there are so many of a syllabus. Okay, starting from crystallography, mineralogy, to a lot of things are there. So GSI will not ask you the particular thing it is mentioning. Okay, so it may ask something that is out of the box, not out of the box in the sense, some conceptual things it may ask, maybe from, so for this 5 mark or 10 mark or 15 marks even. And there are so many of questions that these long questions are not for 15 marks. They will give 5 mark plus a 5 mark plus a 5 mark, or 10 plus a 5. Okay, these type of questions will come into picture. So this concept building, you have to be very clear about what are the concepts behind individual subjects, like for even crystallography, mineralogy, even ore geology, and even structural geology. This concept building is important because you cannot mug up all those things ना. So कुछ तो समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस अभी ऐसे ना आएंगे, नहीं आएंगे कि अच्छा यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट, अभी तुम देगाने के बारे में, सॉरी देगाने में तो ग्रेनाइट डिपॉजिट है, तो कोई सा भी एक और डिपॉजिट के बारे में अगर पूछ लेता है, एंड अभी फॉर एग्जांपल देगाना ग्रेनाइट है, ओके, देगाना एंड बॉर्च ग्रेनाइट इज देयर आल्सो. Now you know what is Degana granite and what is Borch granite, and what is the overall process for the mineralization in these two area. But you have just gone by reading this Degana granite, but is asked this Borch granite. Then how you will just write down? Okay, you cannot leave the questions, na? So here the concept things come into picture, because both are granites. What is the composition, what should be the country rock, and what could be the possible cause for the mineralization. You have to write down this type of things. So this concept building is important. And why this like pyroxene and pyroxenoid, why pyroxenoids are not considered in pyroxene group. So this type of very little things are important. Or why this quartz is not showing any fracture planes, quartz has no cleavage. Okay, or why this snowball garnet is there. This type of concept building is very important. Then second thing, content writing. How much you have to write. uh, in some questions you can see, if it is showing some 5 mark question, two examples I will give. In the first example, there is one question which you can elaborate a lot, but it is asking for 5 mark. Okay, it is asking only for 5 marks, and you have that ability to and just explain this question in a greater way, like you can write down for 2 or 3 pages for this 5 mark. But if you are doing so, then you are a foolish man, isn't it? अभी 5 मार्क के लिए इतना ज्यादा लिखेगा कौन? इसमें अभी क्या क्या लिखना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव टू मेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड केस में क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन दे देगा 15 मार्क का, बट यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही पॉइंट्स हैं, बट यू हैव टू मेक इट एज ए 15 मार्क, इजंट इट? ऐसा नहीं है कि पूरा 3 पेज भर भर के लिखना है. कुछ ऐसा लिखना है कि जो कि लगेगा कि 15 मार्क का है. इफ इट इज आस्किंग फॉर 15 मार्क्स एंड यू आर राइटिंग डाउन फॉर 3 or 4 लाइन्स, देन इट इज नॉट, जस्टिस भी नहीं हो रहा है ना उस क्वेश्चन के साथ. अभी 5 मार्क का कुछ क्वेश्चन पूछा है, देन इफ यू आर राइटिंग सम 3 or 4 लाइन्स, दैट इज ओके. But if it is 15 mark question, then you have to write down minimum 1 or 2 paragraph, isn't it? दिस इज जस्टिस भी नहीं हो रहा है ना. 15 मार्क अभी तुम 4 लाइन लिखे लिखे हो, 15 मार्क देगा कौन, isn't it? So this 5 मार्क अभी बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन 5 मार्क का पूछा है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बुलेट पॉइंट ले लो. 15 मार्क, 15 मार्क का क्वेश्चन आया है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सपांड इट इन ए ग्रेटर वे, तो उसमें क्या करना है? अभी जैसे कि अगर 5 से 7 लाइन है, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो. अभी एक्सटेंड करके 6-7 लाइन हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ कर दो.
अभी कुछ नहीं आ रहा है तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके वहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप का कुछ चीज़ बना दो। तो दीज थिंग्स दीज आर लाइक योर कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट में वही रहना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? क्योंकि अभी अगर तुम देखोगे कि नाउ दिस क्वेश्चंस आर, जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो होगा हमारा, जो एग्जामिनर होगा, उन्हें भी पर डे शायद अराउंड 20 30 और 40 50 इस टाइप का आंसर शीट चेक करना पड़ता है। ओके, चेक करना पड़ता है। एंड ऑफिस आवर स्टार्ट फ्रॉम 9:30 टू 4:30 और 5:30। अभी 5:30 को बस में जाना होगा, तो बस का हॉर्न वहां पे लग रहा है। तो अभी ये है कि तुम इतना लिखो, वट एवर यू राइट, अभी एग्जामिनर वो पढ़ सके या फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट दे पढ़ने के लिए। बिकॉज बहुत सारे एग्जामिनर में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि लॉन्ग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन को यहाँ पर पढ़ रहा है। अगर तुम हेडिंग दे के कुछ ना कुछ लिख रहे हो एंड टू सम रिलेवेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, देन मे बी ही और सी विल जस्ट पुट सम इंटरेस्ट एंड ही एंड सी विल गो इनटू द योर पेपर्स, इजंट इट? तो पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक, नहीं नहीं सॉरी, पहली बात तो ये कि जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। अभी तुम उतने टाइम में, ओके, यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड में तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट आ गया। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो अभी देखो, तुम उतना लिखो जो तुम विद इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड यू कैन राइट। फर्स्ट थिंग, विद इन दैट टाइम पीरियड you can write, okay, you can write, first thing. Second thing, the examiner can check, अभी वो भी चेक कर पाए। ऐसा लिखना है कि वो चेक कर पाए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिख दिया वो भी चेक नहीं कर पाया, तुम भी लिख नहीं पा रहे हो, 20 मार्क का छोड़ के आ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट होगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट पहले से बिल्डअप हो गया है, कंटेंट राइटिंग तुम्हें पता है कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, एंड दिस कंटेंट राइटिंग, हाउ मच टू राइट, व्हेन टू स्टॉप, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो है ये तुम्हारा प्रैक्टिस से आएगा। तो ये जो है ये आप लोगों को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी का होता है कि नहीं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लिख लेते हैं, कोई कोई छोटा छोटा बुलेट पॉइंट करके लिख लेते हैं, किसी का डायग्राम अच्छा है। इफ़ यू आर लाइक डायग्राम कोई बहुत अच्छा बना लेता है ना, देन दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। यू शुड यूटिलाइज दोज थिंग्स। एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ही आपको ये मेन भी पार करवा सकता है। एंड दोज हु आर जस्ट फॉलोइंग ऑन द बॉर्डर लाइन। तो टाइम मैनेजमेंट के बाद आ गया आपका पिक्टोरियल आंसर राइटिंग। पिक्टोरियल आंसर राइटिंग क्या है? फॉर एग्जांपल अभी वो एक फेज डायग्राम पूछ लिया, तो यहाँ पे आप ये बाइनरी या फिर टर्नरी का कोई सा भी फेज डायग्राम पूछ लिया। तो इसमें क्या करेंगे, तो क्या करते हैं कि बच्चे पहले ए बी सी ये करते हैं, देन ए पॉइंट, ये नीचे आया, ऐसे डायग्राम बनाने के बाद नीचे देन दे जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स आर हैपनिंग। और इन एनी केस फॉर स्ट्रैटिग्राफी, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटिग्राफी का एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रैटिग्राफी में वो पूछा है कि जुरासिक ऑफ कॉच और ट्रायसिक ऑफ स्पीटी। नाउ यू जस्ट मार्क दिस, ये हमारा इंडिया मैप हो गया। हाँ, ये हमारा इंडिया मैप हो गया ना। व्हिच एरिया ही इज लुकिंग फॉर, जुरासिक ऑफ कॉच पूछ रहा है या फिर ट्रायसिक ऑफ स्पीटी पूछ रहा है, जस्ट मार्क द ओवरऑल जियोग्राफिक लोकेशन। ओके, अभी उसका जाके लिथोस्ट्रैटिग्राफी नहीं बनाना है, यू डोंट हैव टाइम, टाइम भी नहीं है और ये बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, तो इसे भी पूरा करना बहुत ही ज़्यादा, लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल विद इन दिस 3 hour टाइम पीरियड। ओके, तो पिक्टोरियल आंसर राइटिंग में उसमें ऐसा तुम्हारा डायग्राम ही ऐसा होगा, साइड में कुछ लिख लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लास्ट टाइम आया था तुम्हारा इक्नोफोसिल्स के बारे में, एंड विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट डेप्थ अभी तुम्हें इक्नोफोसिल्स के बारे में बताना है। सो यू जस्ट मेक ए डायग्राम, ओके, this is sea level, so write down what is the overall depth, and you just put some diagram of these fossils which are characteristic of this type of depth, okay, and write down these things. This is this fossil, and what is this importance, this is this, if they have some characteristic features. And overall, this is the only the pictorial representation, and you have to write down some very few lines, that what are the importance, what are their implications, and what is the
like if it is asking some extra informations. Okay, and what are these इक्नोफोसिल्स, क्या है, कहाँ मिलते हैं, उनके टाइप्स यहाँ पे लिखो, उसके बाद डायग्राम बना दो, उसके बाद उनका इंपॉर्टेंस लिख दो। एंड इफ़ यू हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर फॉर एग्जांपल कि अभी इसका ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, या फिर कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन में, कि या फिर कोई सा भी इंपॉर्टेंस, अगर कुछ जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, देन आप उसको स्टार मार्क करके दे सकते हो। एंड दिस इज बेसिकली ए कंप्लीट आंसर। ओके, सो ये तुम्हारा पिक्टोरियल आंसर राइटिंग हो गया। एंड फाइनली आई थिंक, इन माई ओपिनियन, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आंसर सेट क्लीनलीनेस। बिकॉज जो देखेगा आपका नोट्स, ठीक है, आपका जो एग्जाम पेपर जो देखेगा, उसको भी तो इंटरेस्ट आना चाहिए कि हम देखूं। वहां पे बहुत सारे बच्चे, लाइक इफ अभी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गए हैं, देन ऑब्वियसली दे ऑल आर गुड। ओके, तो अभी हैंडराइटिंग अभी सब सब एक ही लेवल में है, सब एक ही लेवल में है। तो वहां पे कोई जो एग्जामिनर है, उसको पता नहीं कि ये लड़का बहुत अच्छा है कि ये बहुत गधा है, ये पता है ही नहीं। सो अभी तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, वो तुम्हारा एग्जाम जो आंसर सीट है, उसी के बेसिस में ही इवैल्यूएट होगा। ओके, ना ही तुम्हारे कॉलर के बेसिस में, ना ही तुम्हारे स्मार्टनेस के बेसिस में वो इवैल्यूएट होगा। वट एवर यू आर राइटिंग ऑन योर आंसर पेपर, योर इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो क्लीनलीनेस अगर क्लीन होगा, डायग्राम होगा, और शेडिंग होगा थोड़ा, ठीक है, और हैंडराइटिंग भी अच्छा है, कहीं पर मतलब बहुत ज़्यादा काट झाट है नहीं, तो वो वाला चीज़ें इम्पोर्टेंस मतलब अच्छा लगेगा एक एग्जामिनर को देखने के लिए। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कंटेंट राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, पिक्टोरियल आंसर राइटिंग, हाँ, यहाँ पर हाँ इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का, एक सेक्शन में 30 मार्क का आता है। इट कैन बी 15-15, इट कैन बी 10-10-10। सो यहाँ पे अगर 10-10-10 एंड 15-15 अगर दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, देन विच ऑप्शन यू हैव टू चूज। ठीक है, पेपर वन में ठीक है, पेपर टू में, पेपर टू एंड पेपर थ्री में बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फिक और तुम्हारा जो मिनरलोजी, जियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है ना, इंजीनियरिंग सेक्शन, ये सब जो आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 10 मार्क का क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, एंड 15 मार्क्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सो यहाँ पर ऐसे देखना है कि इफ़ तुम्हारा सेक्शन अभी 6 सेक्शंस होगा, अभी 6 सेक्शन में से 5 सेक्शन तुम देखो, एक तो तुम्हारा कॉमन सेक्शन हो गया 5 मार्क का, वो वाला छोड़ दो। जो 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में अगर सारा का सारा क्वेश्चन तुम 10-10-10 का अटेंड कर रहे हो, 10-10-10 3 10 मार्क क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, देन मेक श्योर कि तुम्हारा राइटिंग स्पीड उतना फर्स्ट है, एंड यू आर एबल टू राइट डाउन दीज थिंग्स। अगर ऐसा नहीं है तो 15-15 के लिए जाओ, अगर ऐसा है कि तुम लिख सकते हो तो 10-10 के लिए जाओ। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे एक एनालिसिस ही कर लेते हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं। अगर तुम 10-10 का क्वेश्चन करते हो और 15-15 का क्वेश्चन करते हो, नाउ 15-15 का अगर तुम क्वेश्चन करते हो, वहाँ पे इफ द आंसर इज वेरी गुड, तो वहाँ पे वो तुम्हें करीबन 7.5 टू 8 मार्क दे सकता है। तो 8 अराउंड 16 मार्क्स यू आर गेटिंग हियर। ओके, नाउ अराउंड 16 मार्क्स यू आर गेटिंग हियर। एंड 10-10 मार्क का अगर तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, देन वो कहीं पर 5 देगा, कहीं पर 4 देगा, कहीं पर 4 देगा, या फिर 5 देगा। तो नाउ यहाँ पर देखो, 5-5 10 4 14, यहाँ पे देखो 2 मार्क का लैग आ रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 15 मार्क का एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ नहीं रहा है, लेकिन 10-10-10 में मुझे सब आ रहा है, इसमें 15-15 नहीं करना है। मेक श्योर कि वेटेज जो ज़्यादा हो रहा है, if you are very sure about this 10-10-10 questions, I am very sure I can write down in a very clear way, then go for the 10-10-10। एंड इफ यू आर श्योर कि 15-15 भी बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, 10-10 भी बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, देन गो फॉर द 15-15। ओके, इट इज माई ओपिनियन एंड इट मे वेरी। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 10-10-10 का 14, यहाँ पे 15-15-16, तो यहाँ पे जब 2 मार्क का लैग आ जाता है, एंड देर आर 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस में अगर 2-2 मार्क का भी लैग आता है, तो यू आर लैगिंग बिहाइंड 10 मार्क्स। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 मार्क है, या फिर 1 मार्क है, 3 मार्क है, 4 मार्क है, ये
अभी बहुत छोटा लग रहा है, बट जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब 2 मार्क के लिए तुम्हारा हाइड्रो में हो नहीं रहा है, या फिर 1 मार्क के लिए तुम कट गए हो, जीएसआई क्वालिफाई किए नहीं हो, 436 ओबीसी का मार्क क्वालिफाइंग मार्क था, तुम 435 में रह गए हो, तब ये 1-2 मार्क ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेक श्योर यही छोटी-छोटी चीज़ों को अभी से ही ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी से ही ध्यान में रखना है। ये जो फर्स्ट वाला 3 पार्ट है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कंटेंट राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी टाइम मैनेजमेंट में और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द मेन राइटिंग एग्जाम, देन फर्स्ट यू अटेम्प्ट दोज लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने से क्या होता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने से क्या होता है, ये देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसमें क्या होता है कि जब सॉरी, यहीं पे ही कहीं पे लिखना पड़ेगा। चलो, अरे कहाँ गया? यहीं पे लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 1 मिनट। अरे मिटो भाई, क्लास लंबा हो जाएगा। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? अभी टाइम मैनेजमेंट में, अभी अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुम इसमें 2 या फिर 3 लाइन लिखते हो, ये फर्स्ट केस है। और 15 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें तुम 2 या 3 मार्क 3 लाइन का लिखते हो। नाउ इट इज पॉसिबल कि ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है और तुम्हारा जो 2 to 3 लाइन आंसर है, इफ दे आर वेरी लाइक कैरेक्टरिस्टिक बुलेट पॉइंट्स, देन यहाँ पे तुमको 2 से ढाई मिल सकता है, 2.5 to 3 भी मिल सकता है, which is around 50 to 55 to 60%, 50 to 55% मान लो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, that target is no more, not more than 50% out of 600. If you're getting 300 in means, that is a very good mark. Okay, so यहाँ पे 5 मार्क से he can give 2 or 2.5 within this 2 to 3 lines. और 15 मार्क में अगर तुम 2 या फिर 3 लाइन लिखते हो, then he can give you 2 to 3 mark, 2 to 3 mark, not more than that. तो अगर तुम पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आते हो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता नहीं है, ओके, ये ऑब्वियस सा केस होगा, ऑब्वियस सा केस होगा एंड होता है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिए हो, शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम 3 पॉइंट बुलेट पॉइंट छोड़ के जा रहे हो, 2 बुलेट पॉइंट छोड़ के जा रहे हो, देन पॉसिबिलिटी है कि वहां पे तुम्हें 40 to 50% मार्क मिल जाए। लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर दिस 5 मार्क, यहाँ पे तुम क्या किया, पूरा पेज भर के डायग्राम बना के पूरा लिख लिए, तो मैक्सिमम कितना देगा? 5 मार्क से 3 से 4 ही देगा, फुल मार्क कहीं कभी नहीं मिलता भैया। तो 3 से 4 मार्क मिलेगा, समझ रहे हो? सो यहाँ पे जो तुम्हारा डिस्पर्सन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क का है, दैट इज वेरी लेस। लेकिन 15 मार्क में तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे तुम अच्छा करते हो, मैं भी कहीं पर 7 या फिर 6, ये ऐसे मार्क आ जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में जाता है। टाइम मैनेजमेंट में तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्शन है, कितना कंटेंट लिखना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में चला जाएगा। पहले कौन-सा सेक्शन ऐड करना है। और एक चीज़ यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि जब तुम्हारा जीएसआई का मेन का जो पेपर रहेगा, देन पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आंसर के लिए स्पेस रहता है। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि रॉफ रॉफ के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है, या फिर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में ही तुम मार्क कर लो कि ये वाला क्वेश्चन मैं किया हूँ, ये वाला नहीं किया हूँ। क्या होता है कि अभी आउट ऑफ दिस ए 1 2 3 और 1 2, इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा क्वेश्चन मैं किया हूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ के आए हुए हैं, लास्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ। सो वो वाला चीज़ को भी ध्यान रखना है कि पहले तुम कहीं पे लिख लो कि हाँ, ये वाला मैं किया हूँ, ये वाला नहीं किया हूँ, ठीक है? अनदर थिंग, जब ये सब हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगा, कंटेंट राइटिंग भी तुम्हारे पास है, टाइम मैनेजमेंट का दिमाग में तुम बिठा के चल चल लिए हो, पिक्टोरियल आंसर राइटिंग भी है, तुम्हारे पास क्लीनलीनेस भी है, सब है। तब भी क्या होता है कि ना, यूपीएससी जो मेन है ना, बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड कर लिए हो, फिर भी दिमाग में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो लिख नहीं पाओगे, लिख पाओगे, बट यू विल टेक टाइम।
तो इसमें क्या करना है कि कुछ-कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आया तो फटाक से हम सोचेंगे भी नहीं। अगर तुम वहाँ पे 2 या फिर 4 मिनट भी सोचने में गँवा रहे हो, देन डेफ़िनेटली मैं लिख दूँगा कि तुम मिनिमम 15 या फिर 20 मार्क छोड़ के आओगे। एंड ऑलवेज ट्राई नॉट टू लीव एनी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। हालांकि तुम इसमें 3 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो या फिर एक ही डायग्राम बना के आ जाओ, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तुमको बोलूँगा, मैं खुद एक एग्जामिनर हूँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आंसर में बस 3 लाइन लिखा हुआ है, 1 2 3 लाइन और ऊपर से डायग्राम। तो इसमें अगर मैं देखूंगा ये बहुत ही ज़्यादा अगर घटिया भी है, तब भी मैं बोलूँगा चलो अभी इंक बर्बाद किया है तो 2 मार्क दे देते हैं। ये मैं 10 मार्क या फिर 15 मार्क का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस आंसर देन यू आर गेटिंग सम मार्क। ओके, बट मैं देखूंगा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो वहां पे मैं एक कैसे दे दूंगा ये बताओ? एक तो दे नहीं पाऊंगा ना। सो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो, अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा जो प्लान है, हमारा अभी जो हमारा आयुष जियोलॉजी, हमारा जो कोचिंग सेंटर में जो हम प्लान किए हैं, तो उसमें हम ये सब चीज़ों में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, कंटेंट राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, पिक्टोरियल आंसर राइटिंग एंड आंसर सेट क्लीनलीनेस, ये सब चीज़ हम इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड अभी पेपर वाइज डिस्कशन इसके बाद है, तो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत सारे रहते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। अभी ये जो नोट का जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बहुत ही ज़्यादा गलत इन द सेंस, इफ यू गो फॉर सम पर्सन दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस जीएसआई, उनका नोट बहुत अलग है। अभी तुम कहीं कहीं पर बीएचयू का नोट घूम रहा है, कहीं कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूट का नोट्स घूम रहा है। वहाँ पे क्या है कि उनका जो कंटेंट का कुछ बाउंड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। बेटर कि तुम वो नोट कलेक्ट करो, उसका कुछ मतलब समरी जो चीज़ है वो समरी तुम कलेक्ट करो, देन ये तुम खुद का नोट बनाओ। जो नोट होता है ना, ये खुद का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। ठीक है? तो हमारा अभी प्लान क्या रहेगा, जो भी हम पढ़ाएँगे उस बेसिस में बच्चों को कुछ एचडब्ल्यू दिया जाएगा, जो तुम करोगे, एंड वहाँ पर जो रहेगा उसमें क्या-क्या चेंजेस है, क्या कंटेंट में तुम मतलब छोड़ रहे हो या फिर डायग्राम बना रहे हो, जो भी तुम्हारा जो लैकुना रहेगा, दोज़ लैकुना विल बी फुलफिल्ड इन दिस। हमारा जो मोटो है, हमारा मेन मोटो है कंटेंट राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो अपने आप हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने के बाद दिमाग में और कुछ चीज़ें भी रखना पड़ता है। ठीक है, पिक्टोरियल आंसर राइटिंग, आंसर क्लीननेस, ये सब चीज़ें हमारा किया जाएगा। ठीक है, हाँ। और नोट्स जो है, हमारा जो पीपीटी है, दोज पीपीटी ही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है, एंड सम एसेसरी मटेरियल्स जो भी है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और पीपीटी का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम पीपीटी में उतना ही डायग्राम और उतना ही कंटेंट, उतना ही बुलेट पॉइंट रखेंगे जितना तुम लिख सको, तुम समझ सको, और विद इन द टाइम बाउंड तुम लिख सको और तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो अच्छे से देख सके। पीपीटी का मोटो इतना है अभी। एंड विद इन दैट पीपीटी सम विजुअलाइजेशन, कुछ डायग्राम्स रहेंगे, घुमा घुमा के दिखाएंगे, ये सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के केस में ही जाएगा। एंड और कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि और जियोलॉजी में नोट्स देना पड़ेगा। पेपर 3 में जो तुम्हारा है मिनरल पॉलिसी, माइनिंग रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, या फिर कोई सा पर्टिकुलर जैसे कि कपर खेतरी बेल्ट, ठीक है, कोंडापल्ली हिल, अभी तुम्हारा अजनाहली बेल्ट, ये जो पर्टिकुलर एरिया जो हो जाते हैं ना, उसका नोट्स देना पड़ेगा। अभी सुकिंदा क्रोमाइट माइंस, उसका नोट्स देना पड़ेगा इन द सेंस, उसमें तुम स्पेसिफिक नहीं हो पाओगे ना, स्पेसिफिक होना पड़ेगा, सॉरी। ओवरऑल प्रोसेस तुम्हें पता है, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछ देता है तो तुम्हें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, और स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें पेपर 3 में जो चाहिए नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अभी रिमोट सेंसिंग में जैसे कि आईआरएस सीरीज़ है, ये जो सीरीज है जो बेसिकली फैक्ट बेस्ड है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि उसमें नोट्स तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ही, जो हम शायद देंगे। तो हमारा ओवरऑल प्लान यही है।
और पेपर वाइज हम जाएंगे कैसे? अभी यहाँ पर देखो, पेपर 1 में तुम्हारा फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल, सेडिमेंटरी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो यहाँ पर देखो, ये फिजिकल जियोलॉजी सब पढ़े हो। रिमोट सेंसिंग, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, क्लासेस भी होगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सब पढ़े हो, सेडिमेंटरी सब पढ़े हो, पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है पेपर, ठीक है? ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिजिकल जियोलॉजी में पहले बहुत लंबा लिखना पड़ता है, सेडिमेंटरी में ऐसे ही कॉन्सेप्ट आ जाता है, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी इसमें भी ये बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो इसमें मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए, इसमें हमें कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, एंड बाकी जो है फिजिकल जियोलॉजी है, अभी सेडिमेंटरी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, इसमें क्या है कि तुम्हें राइटिंग राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बेसिकली कंटेंट राइटिंग जो अभी बताए थे। तो अभी जैसे कि स्ट्रक्चरल सब पढ़े हो, रिमोट सेंसिंग पढ़ाएंगे हम, ठीक है? तो ये वाला पेपर ओवरऑल ईजी है, कंपैरेटिवली ईजी है। पेपर 2 मिनरलोजी सबको पता है, जियोकेमिस्ट्री पता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, जियोडायनामिक्स, ये जो पेपर है ये तुम्हारा बहुत चूजी हो जाता है। चूजी हो जाता है इन द सेंस, अभी यहाँ से जैसे कि मैं बताया था 10 10 10, इस वाले पेपर में तुम्हें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, 10 10 10 और 10 5 5 एंड 10, ऐसे ऐसे वाले बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? मिनरलोजी, जियोकेमिस्ट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, जियोडायनामिक्स, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड अनदर थिंग हियर इज दैट यू नीड सम कॉन्सेप्ट हियर, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज हैं, जैसे कि मिनरलोजी, जियोकेमिस्ट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है? एंड मैं क्या लेता हूँ ये भी फाइनली डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। मेरा कोर्स है, मैं पहले स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रिस्टलोग्राफी, देन मिनरलोजी, देन दोज मिनरल्स इन इग्नियस, ओके, इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन, इग्नियस में रॉक का तुम्हारा जो मैग्मा सीरीज एंड वेरियस फेज डायग्राम्स, ओके, एंड सम रेस्ट पार्ट ऑफ द इग्नियस दैट विल बी कवर्ड बाय समवन एल्स, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा फेज रूल है, तो कौन कौन सा डिफरेंट फेज रूल है, फेज डायग्राम से, सूडो सेक्शन से, जो कि हमारा इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैग्मा बताता है, ठीक है? अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मैग्मा है, दीज आर नथिंग बट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओरजेनेसिस है। ओरजेनेसिस कॉन्ट्री क्या है, वो इग्नियस है कि मेटामॉर्फिक टाइप है, सेडिमेंटरी टाइप है, हाइड्रोथर्मल है, मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल है, कौन किस टाइप का है? तो मेरा जो सीक्वेंस है, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिस्टलोग्राफी से स्टार्ट होके मिनरलोजी आएगा, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में भी थोड़ा जाएगा, मेटामॉर्फिक का भी कुछ चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारा चला जाएगा ओरजेनेसिस में, एंड ओरजेनेसिस के बाद हमारा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, आई विल बी टेकिंग दिस स्पेक्ट्रम ऑफ सिलेबस। तो यहाँ पे क्या है कि जब ओरजेनेसिस आएगा, ठीक है, ओरजेनेसिस में अभी तुम्हारा प्रोसेस आ जाएगा, इग्नियस आ जाएगा, मेटामॉर्फिक आ जाएगा, सेडिमेंट्री आ जाएगा, देन सरफेसियल प्रोसेस आ जाएगा, हाइड्रोथर्मल, मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल, ये जो चीज़ें आ जाएंगे ना, ये सब चीज़ें, देन दीज आर नथिंग बट द रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड, ओके। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पेपर 3 एंड पेपर 4, हमेशा लोग बोलते हैं कि पेपर 3 एंड पेपर 4 आर टफ। अभी टफ क्यों है? जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना, जो लड़का बहुत फर्स्ट जो लड़का एग्जाम सेंटर से बाहर आता है, देन दो केस में आता है, आइदर उसे सब पता है या फिर उसे कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो टफ टफ बोलते हैं, दिस इज द सेकेंड केस, क्योंकि ये सब चीज हम पढ़ते ही नहीं है। एनवायरमेंटल जियोलॉजी गेट के सिलेबस में भी नहीं है, फ्यूल जियोलॉजी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में, इकोनॉमिक जियोलॉजी इंडियन मिनरल डिपॉजिट में, ये जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, पॉलिसीज हैं, माइनिंग रूल्स हैं, ये कहीं गेट का सिलेबस में है नहीं, तो सब लोग इसको छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी में ओनली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और फॉर्मिंग प्रोसेसेस को भूल जाते हैं, क्योंकि और जियोलॉजी ये एक मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है, शायद मुझे ऐसा लगता है।
सब इग्नियस को पढ़ाते हैं। अरे भाई, अगर इग्नियस को पढ़ा रहे हो देन यू शुड कोरिलेट दैट हाउ दिस इग्नियस प्रोसेस इज responsible for the deposition of this kind of particular economic mineral, ये भी बता दो। है मेटामॉर्फिक पढ़ा रहे हो या फिर सेडिमेंटरी पढ़ा रहे हो, प्लासॉट डिपॉजिट्स कहीं पर है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में बस इतना बता देंगे कि तुम्हारे ईस्ट कोस्ट में है, वेस्ट कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट में ये डोमिनेटेड, वेस्ट कोस्ट में वो डोमिनेटेड। अरे भाई, क्यों डोमिनेटेड है वो भी बता दो। सुपरफिशियल प्रोसेस वही इकोनॉमिक डिपॉजिट आ गया। कहीं पर मैग्नेटिज्म हुआ है, अभी सिंहभूम का एग्जांपल है, सिंहभूम श्योर जोन में तुम्हारा क्या हुआ है, कॉपर, ये तुम्हारा पॉलीमेटालिक मिनरल डिपॉजिट, वहां पर तुम्हारा जादूगुड़ा माइंस है, यूरेनियम डिपोजिशन हुआ है। अब यूरेनियम डिपोजिशन किस कारण हुआ है, वेदर इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस शियरिंग इफेक्ट के लिए हुआ है कि और कुछ हुआ है, एक्सप्लेन कर दो। बिकॉज दिस जो तुम्हारा डिस्टर्बेंसेस है, दोज डिस्टर्बेंसेस आर द साइट्स फॉर द इकोनॉमिक डिपॉजिट्स। कोई सा भी, जैसे कि पहले भी बोलता हूँ, इट्स ए स्ट्रेट रोड कैन नॉट मेक यू ए गुड ड्राइवर, इट शुड बी वेरी साइनस, देन ओनली यू विल बी ए वेरी गुड ड्राइवर। तो हर एक चीज अगर इक्विलिब्रियम, सब इक्विलिब्रियम केसेस में होता तो कहीं पर इकोनॉमिक डिपॉजिट होता ही नहीं, है कि नहीं। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन कहीं पर होगा तभी तो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। सब तो सब होमोजीनियस रह जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, जियो फिजिक्स में हम बोलते हैं अनोमली। जियो फिजिक्स में एक टर्म है ना अनोमली, यही अनोमली, अनोमली ही चाहिए हमको। अनोमली मिलेगा मतलब कुछ है, नहीं मिलेगा कुछ नहीं है। जहाँ पर देखो क्राटन मोबाइल बेल्ट जो भी बोलते हैं, जहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है वहीं पे इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसमें पेपर 3 एंड पेपर 4 में क्या है कि बहुत सारी चीजें हम पढ़े नहीं है, तो इसीलिए हमें थोड़ा टफ लगता है। बट नो वरी, ये जो तुम्हारा मिनरल एक्सप्लोरेशन है, एनवायरमेंटल जियोलॉजी है, एंड इंडियन मिनरल डिपॉजिट्स में, इसमें तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है माइन रूल, एमएमडीआर जो रूल, ये सब एक्ट जो आता है, ये सब चीज़ों का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा सैम्पलिंग, देन या सर्वेइंग, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन लोगों का तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले इसको समझने के बाद नोट्स के साथ तुम्हें ये सब लिखना भी पड़ेगा। सो एंड पेपर 4 में तुम्हारा हाइड्रोजियोलॉजी, यही हाइड्रोजियोलॉजी में बस गेट के सिलेबस में देख लो, हमारा डार्सी लॉ है, डार्सी लॉ, उसके बाद और कुछ नहीं। जितना भी फॉर्मूला है तुम्हारा, फॉलिंग हेड, परमियामीटर, देन तुम्हारा स्टैटिक कांस्टेंट हेड परमियामीटर, और तुम्हारा जैसे ग्राउंड वाटर फ्लो का इक्वेशन, जितना भी ये सब डार्सी लॉ के लॉ से निकल जाएगा। लेकिन अभी जैसे कि ये तुम्हारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में जियोफिजिकल मेथड, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वाटर लेवल एंड वेल हाइड्रोलिक्स, ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए ये सब चीज़ हम स्किप कर लेते हैं। तो ये सब स्किप नहीं करना है, इसी को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। दैट्स वाई पेपर 3 एंड पेपर 4 हमें थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि वो चीज़ हम कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2-3, पेपर 2-3 इसीलिए बोल रहा हूँ, और पेपर 4 चलेगा। पेपर 4 अभी हमारा स्टार्टिंग होगा हाइड्रोजियोलॉजी, ये स्टार्टिंग, ये हमारा स्टार्टिंग होगा। एंड पेपर 2-3 में किस लिए बोल रहा हूँ, आई वाज जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट ओवर दिस पेपर 3 मिनरल्स, सॉरी, और जियोलॉजी, बट मुझे लगा कि I don't know what is the standard, what is your understanding, what is your concept about and that is regarding to this ore geology. Whether if you are not very much clear about minerals, not very much clear about crystals, not very much clear about this igneous metamorphic type of petrology, then I will not be able to explain all those things. And if I explain, then you will not be able to catch those things. That's why I thought कि पेपर 2 वही क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरलोजी से वहाँ से स्टार्ट करके मैं और जियोलॉजी तक आऊँगा। ठीक है, सो दिस इज द प्लान, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 4 का हाइड्रोजियोलॉजी ये तुम्हारा हो जाएगा, एंड पेपर 3 का जो तुम्हारा है मिनरल्स एक्ट या फिर तुम्हारा जो पॉलिसीज है, तो इसमें जो तुम्हारा IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये जो है, ये जो चीज़ें हैं, इसका तुम्हें शायद नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिफोर हैंड। उसका क्लास मेरे साथ ही होगा या फिर हाइड्रो खत्म होने के बाद ही होगा। सो ये जो पार्ट है, इसका एक्सपेक्टेड डेट तुम अभी लिख लो, ये मार्च चल रहा है, मार्च 20 to 25, इस वाले टाइम में ये सब चीज़ें स्टार्ट होगा। अभी मेरा जो क्रिस्टलोग्राफी, मिनरलोजी, ऑप्टिकल मिनरलोजी, एंड उसके बाद इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन,
एंड मैग्मा सीरीज, ये सब अभी चलेगा अप टू मार्च 2025 तक चलेगा। देन हाइड्रोजियोलॉजी बाय दैट टाइम आई थिंक खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाता है देन तुम्हारा ये वाला चीज स्टार्ट हो जाएगा। मेरा वहां पर जो चल रहा है वही चलता रहेगा। वहां पे और फॉर्मिंग प्रोसेस में भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो पाएगा। एंड ऑल इट डिपेंड्स, अभी देखो मुझे अगर जाना है तो सबको लेके जाना है। ओके, एंड आई डोंट वांट एनीवन, दोज हु आर डिजर्विंग, यू डोंट मिस दिस चांस। जो भी डिजर्विंग है, तुम हमारे से कोचिंग लो, किसी दूसरे के दूसरे से कोचिंग लो, या फिर तुम खुद ही प्रैक्टिस करो। भाई जिंदगी अभी तुम्हारा बनेगा, ठीक है? अगर तुम किसी का हेल्प ले रहे हो या फिर खुद से ही कर रहे हो, नो वरीज, बट मेक श्योर दैट इफ यू आर डिजर्विंग, if you are hardworking, you are doing sincere preparation, don't let very silly mistakes, don't let very silly causes to ruin your result, because इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जॉब सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। अभी एक रील नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आया है इसका, शाहिद कपूर का एक वेब सीरीज आया है, क्या नाम है उसका, भूल गया। वहाँ पे एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं भी एक एक दिन स्टाटस में लगाया था कि भगवान, सॉरी, पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। क्या लाइन है! एंड ऑल ऑफ यू कैन रिलेट, ठीक है? एंड ऑब्वियसली मैं, हमारे जो अभी अवेलेबल हमारे स्टोर में जो हमारा कोर्सेस अवेलेबल हैं, अभी नेट का कोर्स है एंड यूपीएससी जीएसआई का कोर्स भी है। जीएसआई का हमारा प्राइस 6500 है एंड नेट का हमारा जो प्राइस है 3500 है। एंड इन दोनों का जो ओवरऑल ड्यूरेशन जो है, ठीक है, अराउंड 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स और 3.8 मंथ्स हैं, क्योंकि नेक्स्ट जून में ही हमारा नेट का एग्जाम होगा। 2 एग्जाम जो नहीं हुआ है जून में ही होगा। एंड आज इसका तो जून 24 जून, ये तो डेट पहले से ही पब्लिश्ड है, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली हम ये दोनों का क्लासेस हमारा रहेगा। अभी देखो जैसे कि कुछ बच्चे मुझे अ, बोले थे कि अभी असिस्टेंट हाइड्रो का कुछ कोर्स निकालने के लिए। द थिंग इज दैट आई डोंट नो कि कितने बच्चे आएंगे फर्स्ट थिंग, और उन बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है। अभी बस ऐसे ही अगर मैं कोर्स लॉन्च कर देता हूँ देन आई विल नॉट बी एबल टू, अभी ना ही मैं जीएसआई मेन को रख पाऊंगा, ना ही मैं असिस्टेंट हाइड्रो को रख पाऊंगा। तो अभी मेरा फोकस ये है कि जो हमारा जीएसआई के सिलेबस में जितने भी सारे चीजें हैं, तो वो वाला चीज जो असिस्टेंट हाइड्रो के लिए चाहिए वो वाला हम पहले कवर अप कर लेंगे, या फिर उसके लिए कोई सा पीडीएफ या फिर मटेरियल वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा मेरीन जियोलॉजी है, मेरीन जियोलॉजी या असिस्टेंट हाइड्रो में है, तो मेरीन जियोलॉजी तो हमारा नेट के सिलेबस में आएगा ही। तो नेट का जो क्लासेस है वो मेरीन जियोलॉजी वाला पार्ट और उसके रिलेटेड पीडीएफ एंड जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा, देन विल मेक दोज थिंग्स अवेलेबल फॉर यू गाइस, जो हमारे यहाँ पे कोर्स में एनरोल्ड हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सीएसआर में नेट में है एंड जीएसआई में है, वो लोग असिस्टेंट हाइड्रो दे रहे हैं, हम उनको मटेरियल नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। दोज हुएवर, अभी तुम नेट में हो या फिर जीएसआई में हो, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस असिस्टेंट हाइड्रो, देन ऑब्वियसली वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए इसमें से, ठीक है? तो ये याद रखना, कौन सा चीज़ याद रखना है? हाँ, हम्म, पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। हाँ, और एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बच्चे आते हैं 6500, यू कैन सी, जस्ट इफ इट इज अ 4 मंथ कोर्स, ओके, एंड इफ यू आर पेइंग फॉर 1500 टू 1600 1700, देन यू आर पेइंग दिस 6500, एंड दिस 6500 ये हमारे पास पूरा भी नहीं आता है। हमारा एप्लीकेशन 500 रुपये ले लेता है, तो हमारे पास जो आता है वो 6000 है, ठीक है? सो फॉर मंथ 1500, यू जस्ट इमेजिन कि हम तुमको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारा जो नोट्स हैं, दोज नोट्स विल बी रेगुलरली वेरीफाइड, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ही यही है कि राइटिंग प्रैक्टिस ही हमें करवाना है, ठीक है? और उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद अगर तुम्हारा जॉब लग जाता है इसमें से, एंड इफ यू फील दैट ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, देन हम पैसा ले सकते हैं, उसके बाद 50,000 दे देना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स,
और प्रिपरेशन कैसे करना है। यहाँ पे लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमेशा याद रखना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर डिज़र्विंग, ओके, एंड इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, एंड इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ जो प्रीलिम्स में 220 लाए हैं भाई, और मेन में 150 मार्क, 3 पेपर मिला के 150 भी नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है, बट स्टिल ड्यू टू सम दिस गाइडेंस प्रॉब्लम और राइटिंग प्रैक्टिस है नहीं, या फिर कुछ कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। So these things, because these 220 securing guys, these are very like potential है उनमें, these are the deserving candidates, but still they are not getting into this, they are not getting their result, positive result. Okay, so if you are very deserving, if you are very hardworking, and if you are getting proper guidance, then obviously don't let any kind of very small little mistakes ruin your future. ओके, अभी छोटा छोटा कोई सा भी एक गलती मत करो जिसके कारण तुम्हारा यहाँ पे ना हो, या फिर ये चांस मिस हो जाए। ठीक है, 250 सीट बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये जो 3-4 चीज़ें हैं, अगर तुम खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करो। अगर तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसा लगता है, एंड हमारे पास तो बहुत सारे वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड वॉच ऑल आवर वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो वहाँ से तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हम तुमको उस डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं कि नहीं। ओके, और हमारे जो सक्सेस स्टोरीज अभी तो चल रहा है, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर दिस जीएसआई मेंस, एंड आउट ऑफ दिस 20 हमारे पास जो थे शायद चार 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 टू 4 to 5 ये हमारे कोचिंग के हैं, स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, इनको जॉब हो गया है। एंड हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ में से 2-3 लोगों का भी हुआ है। अभी आउट ऑफ दिस 20 सम 2 स्टूडेंट्स आर getting good marks in gate also, and hope they will get into ONGC, wish I can wish। and 8 लोग यहाँ पे हमारा प्री क्वालिफाई किए हैं। तो ये भी हमारा एक छोटा सा सक्सेस स्टोरीज है। एंड रिमेंबर, ये जो 20 स्टूडेंट्स हमें मिले थे, दिस 20 स्टूडेंट्स आर नॉट regular students, regular students in this, in the sense we have started our batch only some 4 months, 4 महीने के लिए हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ था और ख़त्म भी हुआ था। वी स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड विद इन दिस शॉर्ट पीरियड अगर हम ये कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली वी हैव समथिंग। मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा सब कुछ है, कुछ तो है जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है। सो इफ़ यू थिंक दैट वी कैन हेल्प, देन ऑब्वियसली यू आर वेलकम टू आवर ग्रुप। So thank you very much, and if you're interested, then you can contact these numbers. This is the mail ID, and there will be a link tree that will be provided in the description box, and our course link will be also provided in the description box. You just click on that and go to our website, and directly go to Play Store and download our app. Everything is inside the application, and always remember, we have only one motto: save our mother earth. So go green, पेड़ वेड़ लगाओ यार, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। So thank you very much, and all the best.